there is there is one mirror, and a student is standing in front of it, and before coming to the school, he is looking himself in the mirror, dressing mirror. So early morning, you also come with the proper grooming, and before leaving the house, you see yourself whether my turban is okay, whether I have proper belt, or I have the pens in my pocket, etc. So all these things you see yourself in a particular kind of mirror. Let me tell you, this mirror is completely a flat surface. That is why we call it plane mirror. Plane mirror. So from here, the student should conclude that one type of the mirror is plane mirror. Fine. Now, suppose in the same mirror, what I do, I press the mirror a little inward. Suppose this mirror is little flexible, and at the center of the mirror, I push it little inwards. If I push it little inwards, its shape appears like this. Okay. From the back side, every mirror is silver polished. Which metal is sprayed? Silver polished. Okay, usually silver polished. There can be the other metals also. Sometimes chromium, sometimes nickel, sometimes even gold. Okay, but we have usually silver or silver polished, and the central portion of the mirror is little inward. So the person now is standing here. This person is standing in front of which kind of mirror? Your attention, such a mirror is called concave mirror. Concave mirror. Okay. Now listen another thing. Suppose this mirror is flexible, and this boy holds the mirror from the middle of the plane mirror and pull it out. So listen, earlier he was doing what? Pressing the mirror from the center. He got concave mirror. Now another imagination, hypothetical situation. Suppose this person pulls the mirror from the central portion forward. So in that situation, the mirror will appear like this. Central portion is exalted outward. In the previous case, central part of the mirror was pressed inwards. Here the central portion is exalted towards the observer. For this observer, this mirror is another type still. What is the name of this type? Convex mirror. Convex mirror. Now again come to this side, bache. I will tell you the shapes of the lenses also, then we will show these slides. Intelligent students should make these diagram as quickly as possible. Shabash, every wise student will make the diagrams of the three mirrors. Okay. Now let me tell you how to make the lenses. Your attention. Better look here. Suppose I have a sphere of the glass such that this glass sphere is solid from inside. It is not hollow. Okay? ये ऐसा गोला है जैसे क्रिकेट की बॉल अंदर से भरी होती है. ये ऐसा गोला नहीं है जैसे कि फुटबॉल होती है. This is the solid sphere of the transparent glass. What I will do? I will cut some portion from this side, and I will cut some portion from this side. I will pick the both portions and join them such that this portion comes on this side and this portion comes on this side. And this kind of structure I will obtain. From the side view, it will look of this shape. This is your side view. And if some person stands here and look at this, it will appear circular. So side view is what? How type?
It is thicker at the central portion and thinner at the पेरिफेरीज, सर्कमफ्रेंस, ओके। साइडों पर ये थिनर होगा और सेंटर से मोटा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सच लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। नाउ आई एम टेलिंग यू another kind of mirror, sorry, lens. How I will do? Listen very attentively. I have again taken a solid glass sphere. मैंने कांच का एक गोला ले लिया. What I am doing? I am cutting the mirror, this sphere from this side, as well as cutting the center another part from this side. Now the both cut portions are placed this way, are placed this way, such that central portion is filled with the glass. Okay, so such kind of lens obtained is called concave lens, concave lens. Okay, and if you see this lens from the front side, it will also appear circular. Okay, so whatever I have shown you, this is your side view. अब बच्चा बोलता है सर मैं इसको चेक कैसे करूंगा कि वेदर इट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस? वेरी सिंपल. कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द मिडल सेक्शन, वेयर एट इट इज थिकर एट द पेरिफेरी, आउटर सेक्शंस में ये थिकर होगा. अगर मैं आपको ये डायग्राम बना के बताऊं तो आप कह सकते हो जो लेंस किनारों से मोटा होगा और सेंटर से पतला होगा. आप ऐसे पकड़ के देख सकते हो ना, जैसे सपोज करो ये मैंने माउस पकड़ा हुआ, माउस मैट पकड़ा हुआ है ना, तो मैंने अगर ऐसे पकड़ा तो सेंटर से पतला हो और साइडों से मोटा हो, सेंटर से पतला हो और साइडों से मोटा हो, सारी तरफ. ऐसा लेंस जो है दैट इज योर कनकेव लेंस. अगर मान लीजिए उल्टा होता, कैसे? मेरे पास एक लेंस होता, वो सेंटर से तो मोटा हो, इट इज थिकर फ्रॉम द सेंट्रल पोर्शन, लेकिन किनारों पर बहुत पतला हो, किनारों पर पतला हो, तब हम उसको बोलते हैं व्हाट इज इट? कॉन्वेक्स लेंस. एंड बोथ ऑफ लेंसेज आर मेड फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट सॉलिड ग्लास स्फीयर. कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है, यूजुअली ग्लास हो सकता होता है. और ये मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है सर मान लीजिए ये बर्फ का बना हुआ है, तो बर्फ से ऐसे काट के लेंस बना सकते हैं आइस से? यस सर. मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, एक्रिलिक शीट है, उससे भी बन सकता है लेंस. बट यूजुअली द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ग्लास इज बेटर. दैट इज व्हाई lenses are made most of the times from the glass. सो हमने क्या देखा बेटे? हमने इसमें देखा मिरर्स की 3 टाइप्स: प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. और लेंसेज के 2 टाइप्स: कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. जिन बच्चों को ये पांचों स्ट्रक्चर समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड. शाबाश, इफ यू हैव अंडरस्टूड. सनफ्लावर, गुड रेस्पॉन्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब बेटर है कि हम इन चीजों को फोटोग्राफ्स की मदद से देखें और जल्दी जल्दी से चीजें सीखें, फिर हम असाइनमेंट करें. शाबाश. सो आई एम गोइंग आउट. लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक हियर. In this photograph, I am going to explain you what rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. एक बच्चा पूछता है सर ये जो वर्ड लिखा है ना रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इसका मीनिंग क्या है? लिसन. जब भी आपको साइंस में ये वर्ड आ जाए ना, प्रोपेगेट, ये प्रोपेगेट से बना बेटे. प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मैंने टू प्रोपेगेट का मतलब है टू एडवांस, यानी कि आगे बढ़ना. एडवांस, आगे बढ़ना बच्चे.
और रेक्टिलिनियर का मीनिंग है, ध्यान से सुना, this flame of the candle is presently serving as the source of light. From the source of light, a ray of light always travels in the same straight line. रे ऑफ लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लाइट की किरण की इस गुण को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द रे ऑफ लाइट दैट इट ट्रेवल्स ओनली इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बच्चा कहता है सर ये एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में क्या दिखाया हुआ है? ध्यान से सुनो, इस लड़के ने क्या किया, he has taken 3 कार्डबोर्ड, एक ही साइज के 3 कार्डबोर्ड ले लिए और तीनों की हाइट वुडन प्लैंक से बराबर रखा। और मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, इसकी एक लाइन ऐसे लगाई डायगोनल और एक लाइन ऐसे लगाई दूसरा डायगोनल। दोनों डायगोनल जहां पर कट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक छोटा सा होल बना दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ऐसा ही तीनों में करा उसने, राइट। अब इसने क्या नोट करा, जब ये तीनों कार्डबोर्ड्स के होल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं तभी इस लड़के को कैंडल का फ्लेम दिखता है। इन अदर वर्ड्स, देन ओनली द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम द सोर्स दैट इज कैंडल ऑफ द फ्लेम, सॉरी फ्लेम ऑफ द कैंडल, ट्रेवल्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो बीच में से किसी भी कार्डबोर्ड को इधर या इधर कर देता है तो क्या नोटिस करता है कि उसको फ्लेम दिखाई नहीं देता। एक भी कार्डबोर्ड को थोड़ा इधर कर दिया थोड़ा इधर कर दिया, तीनों ही होल एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते। जब तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे इसको फ्लेम नहीं दिखेगा। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट we can easily conclude that from the source of light till the human eye, light ray travels in the same straight line. If the passage of the straight line is disturbed by moving one of the cardboard, the ray of light will be obstructed in between. It will not be able to reach the human eye from the source of light. This activity concludes that light travels in the same straight line, and this property will be given a heading rectilinear propagation. Rectilinear propagation. Now tell me, if you really has understood this, then please raise your hand. Shabash. Have you understood what is meant by rectilinear propagation? So डैफोडिल का सेक्शंस के बच्चों को पूछना चाहता हूं दोबारा से, अगर किसी का हाथ ना खड़ा हुआ तो उसको माइक पर आकर बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं समझ आया। Okay, once again I ask the daffodil students, particularly lazy students, have you understood this? Okay, let me check who's, अब मेरे को बुलाना पड़ेगा। ओके अब तो ठीक है रेस्पॉन्स। नाउ लोटस, हैव यू अंडरस्टूड द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? ओके ये रेड टी शर्ट वाले बच्चे को बुलाना पड़ेगा फिर, नहीं ठीक है। सनफ्लावर, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन? गुड गुड। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ओनली 1 मार्क, तब आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना। तब आपने लिखना है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट टिल द ह्यूमन आई, light travels in the same straight line. This property of ray of light is known as rectilinear propagation. बस 1 मार्क का है तो इतना। अगर 3 मार्क्स का आता है तो आपने इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद इस एक्टिविटी को भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। ओके अगर 3 मार्क्स का आता है। सो इस तरह से हमने ये सीखा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। Listen. Oh, reflection of light is shown. You see bete reflection of light. Okay. Can you tell me what is this? Plane surface, reflecting surface. ये मिरर भी हो सकता है और ये बहुत शाइनिंग मेटल शीट भी हो सकती है। This is source which is serving as
सोर्स ऑफ लाइट, और अब देखो यहां से ये जो लाइट आ रही है इसको टीचर ने लिखा इंसिडेंट लाइट, और ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इट ट्रेवल्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और ये देखो फोटोग्राफ में हल्का सा मिस्टेक आ गया, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि ये मिरर के सरफेस से टकरानी चाहिए, लाइक दिस। ये मिरर्स के सरफेस से लगाई इंसिडेंट रे, एंड देन कमिंग टू दिस साइड, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। इट शुड हैव शोन लाइक दिस। और तो यहां से ये गई ऐसे और यहां से टकरा कर वापिस आई। नाउ वन मोर थिंग, if I draw a dotted line which is perpendicular to the plane mirror, ये लाइन इस प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सर मेरे को नहीं समझ आया। इसका मतलब ये है अगर आपका प्लेन मिरर बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है तो ये डॉटेड लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ऐसी लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, जैसे कि ये टॉर्च से जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट वापस आती है मिरर से टकरा के, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और प्रोसेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, अब और क्या चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आई से लिखते हैं टीचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नीचे लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ लाइन बनाई उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर से लिखते हैं बेटे, वो भी लिखा हुआ है। और हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और एक खास बात सुनो, अगर मैं यहां से एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेकर आऊं, मान लीजिए वो व्हाइट शीट ऑफ पेपर प्ले इंसिडेंट रे को कट करती है, और मैं मोशन कंटिन्यू रखूं तो वो नॉर्मल को भी कट करेगी, और आगे मोशन कंटिन्यू रखूं व्हाइट शीट का तो रिफ्लेक्टेड रे को भी कट करेगी। यानी कि ये तीनों ही, कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे मैं व्हाइट शीट बोल रहा था तो कागज की शीट के प्लेन में लाई करेंगे। कोई भी इन तीनों में से कोई भी कागज की शीट से बाहर नहीं आएगी, ना ही इनवर्ड रहेगी। ऑल द थ्री विल लाई इन द सेम प्लेन। ये भी एक लॉ होता है बच्चे। अब गौर से देखो एक चीज और, बहुत से बच्चों से पेपर में कभी कभार ये एंगल पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मिरर के ऊपर मैंने एक लाइन लगाई और इंसिडेंट रे ने ये एंगल कितना बनाया, ये वाला एंगल देखो जिसको टीचर शेडेड कर रहा है, शेडेड, ये वाला एंगल कितना बनाया, कितना है, एक पेपर में पूछा हुआ था। तो बहुत से बच्चों से हुआ ही नहीं। लेकिन एक समझदार बच्चे ने देखा कि सर आपने अभी अभी बोला था ना कि ये नॉर्मल होता है। मैंने कहा हाँ बेटे, तो आपको ये तो पता ही है कि नॉर्मल एंगल ने 90 डिग्री का एंगल बनाया होता है। क्यों क्यों बनाया होता है? क्योंकि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रे होता है और मिरर वर्टिकल है, तो ये 90 डिग्री है। सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? मैंने कहा 30 डिग्री है, मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए पेपर में आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर देखो, आप ये वाले एंगल को आई बोल दो और इस वाले एंगल को मान लीजिए शेडेड वाले एंगल को आपने जी बोल दिया, जी। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री इज इक्वल टू आई प्लस जी। मैंने कहा यस सर, फिर पेपर में आपको आई तो 30 डिग्री दिया हुआ है, आप इसको पुट कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, योर आंसर, आपका गिवन शेडेड एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एंगल मैंने जी लिखा है, सभी बच्चे अगर ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, अपने कंपटीटर से बेटर नॉलेज चाहते हैं, तो याद भी रखना है इस जी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस,
एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं बेटे। ओके क्या मतलब, वट एवर द इंसिडेंट रे मेक्स द एंगल विद द प्लेन मिरर दैट इज नोन एज एंगल ऑफ ग्लास। और इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, वट एवर इंसिडेंट रे मेक्स एंगल विद द नॉर्मल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ग्लास दोनों का टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये भी आपका एक लॉ है। कौन से लॉ हो गए, एक ये लॉ हो गया बेटे और एक ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। जिन बच्चों को ये लॉज समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी किसको बुलाना चाहिए माइक पर डाउट क्लैरिटी के लिए। हाँ हाँ बुलाना पड़ेगा। सनफ्लावर, ब्लू टर्बन स्पेक्स वाला बच्चा, ब्लू टर्बन स्पेक्स वाला बच्चा दीवार के साथ बैठा है, दीवार के पास कोई नहीं है। अब देखो चलो, स्पेक्स नहीं है शायद इसके, चलो एनी हाउ बाद में उसने हाथ खड़ा करा। सो आई शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। कितने कितने बच्चों को अगर अगर अपने आप को क्रॉस चेक करना हो कि मेरे को ये समझ आ गया कि नहीं बेटे, अगर क्रॉस चेक करना हो तो आपको पता लगना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल ऑफ ग्लास क्या था, इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना एंगल ऑफ ग्लास का टोटल कितना होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं। इतनी बातें अगर आपको पता लगी तो आपको ये आर्टिकल समझ आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। लुक यार बेटे, ये देखिए आप, यहाँ पर फिर से मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया है और गौर से देखो इस बार मैंने मिरर को जमीन पे लेटा दिया है। इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल और इधर से ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्टेड रे गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को टीचर ने थीटा 1 लिखा। इस लेटर को बेटे थीटा बोलते हैं, सभी बच्चे याद रखें। जब भी एक इस तरह की वैल्यू दी हो, ऐसे जीरो जैसा बीच में कट किया हो, तो इसको बोलते हैं थीटा। ये आपको याद रखना है, आने वाली क्लासों में भी काम आएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है थीटा 2 और दोनों ही एंगल आपस में इक्वल पाए जाएंगे। ओके और ये देखो टीचर ने जो व्हाइट शीट वाला एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था, वो कह रहा है मैं ऐसे व्हाइट शीट नीचे लेकर आ रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये व्हाइट शीट इंसिडेंट रे को भी कट कर रही है, नॉर्मल के ऊपर ऊपर कट करती है और रिफ्लेक्टेड रे को भी कट करती है। ये तीनों ही, ये देखो ला, इसको भी ला बोलते हैं। ऑल दी थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ऑल दी थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या लिखा हुआ है, लेट मी रीड फॉर यू। द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उस प्लेन को इसने ये व्हाइट शीट के रूप में दिखाया हुआ है और ये दोनों ही लॉज हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। बेटे मैं एक चीज देख रहा हूँ, सनफ्लावर के बच्चों का ध्यान नहीं है पढ़ने में, ओके बाकी दोनों क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। कोई बच्चा पीछे मुड़ के बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहा, ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा, कोई आपस में बातें कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि मैं आपका फोटो खींच के भेजूं हायर अथॉरिटीज को। ओके सो शाबाश, योर अटेंशन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। देखो बेटे ये हमने सीखा, हमारे पास काफी अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं, उनका पर्पज अलग अलग है। कोई शेविंग मिरर होते हैं जो अच्छे अच्छे ब्यूटी सैलून्स होते हैं, उसमें जो हमारा इमेज होता है ना बेटे, वो इमेज हमारे फेस का इमेज बड़ा करके देखना होता है हमने, एनलार्ज्ड, उसको शेविंग मिरर बोलते हैं।
मैं बताना चाहूंगा उस मिरर की शेप होती है कॉनकेव मिरर। यहाँ पर बंदा खड़ा होएगा, उसका फेस उसके अपने फेस से डबल के भी साइज से बड़ा दिखेगा। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर द ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसर्स, जो अच्छे अच्छे महंगे वाले होते हैं। आप कहोगे सर जो हम जाते हैं शॉप पे हेयर ड्रेसर की, उनका तो प्लेन मिरर लगा होता है। बेटे वो जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, जो सस्ते वाले हैं वो। लेकिन जहाँ प्रोफेशनल शेव होता है, मान लीजिए मैंने मैरिज पे जाना है, अच्छे से टर्बन बांधनी है अपनी, तो मैं अगर जाऊंगा वहां पर, तो अच्छे से ब्यूटी सैलून्स में जो जेंट्स के लिए भी बने होते हैं, उनका मिरर ऐसे अंदर को झुका होता है सेंटर से। तो मेरा इतना फेस वहां पर इतना बड़ा दिखेगा। तो मेरे को आसानी से पता लगेगा, अरे भाई इधर आओ, यहाँ से टर्बन सेट करो, यहाँ से करो, यहाँ से शेव अच्छी करो। तो ये कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास अगर खड़े हो जाएंगे तो हमें इमेज बड़ा दिखता है। अब जो सुबह सुबह आप तैयार होकर आते हो, उसको लुकिंग मिरर बोलते हैं। उसमें सेम साइज का इमेज होता है बेटे, सेम साइज का, जो जिसको आप ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर कह सकते हो। एक होता है ये डेंटिस्ट मिरर। उसमें भी तो हमने दांत का अंदर से बड़ा इमेज करके देखना है, तभी तो हमें अच्छे से दिखेगा दांत और हम ऑपरेशन कर पाएगा डॉक्टर। रियर व्यू मिरर, हमारी कार का या स्कूटर का, टू व्हीलर का मिरर जो होता है, पीछे वाले मिरर्स व्हीकल्स को देखने के लिए। मैं सड़क पे ऐसे ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ और मैंने अपने मिरर पे देखा, तो बैक साइड पर पूरी सड़क दिख रही है और पूरी सड़क का व्यू आ रहा है। तो ऐसे जो मिरर्स होते हैं रियर व्यू मिरर, वो इस तरह से होते हैं बेटे। इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और लास्ट में है सर्विलेंस मिरर। सर्विलेंस का क्या मतलब होता है? निगरानी करना। मान लीजिए मैं किसी शोरूम का मालिक हूँ, मैं यहाँ काउंटर पे बैठा हूँ और बहुत सारे कस्टमर अपना सेल्फ सर्विस से मटेरियल बास्केट में डाल रहे हैं माल में से। मेरे को ये बिस्कुट चाहिए, मेरे को ये फिनाइल चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं आ गया जो चॉकलेट्स को पॉकेट में ही डाल रहा है सीधा, ऐसा तो नहीं आ गया। तो मैं सर्विलेंस मिरर से देख सकता हूँ पूरे शोरूम का इमेज, मेरे काउंटर के ऊपर लगे हुए मिरर के ऊपर आ जाता है। ऐसा मिरर कौन सा होता है? वो भी कन्वेक्स मिरर होता है। इधर से सिल्वर पॉलिश, इधर से बंदे का इमेज दिखेगा। लार्जर व्यू कवर करना हो अगर हमने, तो हमें कन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ता है। तो नीचे वाले जो है ना, रियर व्यू मिरर और सर्वेलेंस मिरर, ये दोनों कन्वेक्स होते हैं। ओके। और अपना ये बता दिया आपको कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जो ब्यूटी सैलून्स का होता है। सुबह तैयार होकर आते हो तो लुकिंग मिरर प्लेन मिरर होता है अपना। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। तो मैं इसको फोटोग्राफ से और अच्छे से दिखाता हूँ अपने बच्चों को। तो देखो ये लड़का चला गया, प्रथम है इसका नाम। और ये प्रथम अपने फादर के साथ, उसके पापा के दांत में दर्द हो रहा था, वो साथ में चला गया डेंटिस्ट के पास। तो क्या नोटिस करता है कि उसकी क्लिनिक बड़ी हैरान हो जाता है, ये कैसी चेयर है। ओके। एक्चुअली प्रथम के पापा ही डेंटिस्ट हैं, सॉरी। देखो, डॉक्टर प्रथम डैड डेंटिस्ट। तो वो अपने पापा के वहां पर एक ग्लास उठाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो क्या देखता है, उसका फेस तो छोटा सा, नाक छोटा सा है, लेकिन इमेज में बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा मिरर कौन सा होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। बेटे ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, ये हमेशा याद रखना सभी बच्चों ने, ये लेंस होता है, एक लेंस जिसके आर पार देखा जा सकता है। नहीं सॉरी, ये मिरर है, सॉरी मिरर है। इसमें बड़ा दिखेगा आपको। ये कौन सा मिरर दिखेगा? कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनना, जो अंदर की तरफ ऐसे झुका होगा गोलाई में। कॉनकेव मिरर में फेस बड़ा दिखता है हमेशा, अगर फेस को बहुत पास रखा जाए। फेस ऑफ द चाइल्ड इज सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट, और जो उसके अंदर उसको दिख रहा है उसको बोलते हैं इमेज। इमेज विल बी मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड, प्लेस्ड वेरी क्लोज्ड टू द कॉनकेव मिरर। सभी याद रखना है, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जो अंदर को ऐसे झुका हुआ हो।
यानी ये लड़का अगर सेंटर में हाथ लगाएगा तो फिंगर ज्यादा अंदर जाएगी, इस मिरर की बाउंड्री पे हाथ लगाएगा तो शुरू में ही रुक जाएगी। तो बाउंड्री वाला पोर्शन बाहर को है और सेंट्रल वाला पोर्शन अंदर को है। ओके, तो किन बच्चों को ये डेंटिस्ट की एक्टिविटी समझ आ गई है, डेंटिस्ट के बच्चे की? प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे एक बार। सारे फोटोग्राफ्स हमें बहुत सारे हैं हमारे पास। एक और देखो, और एक सरप्राइजिंग चीज, उसी मिरर को जब पास रखा था तो मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा था, लेकिन उसी कॉनकेव मिरर को जब ये लड़का बहुत दूर कर लेता है, स्ट्रेचिंग हिज आर्म, बहुत दूर कर लेता है, तो ना केवल उसका इमेज छोटा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, पहले वाले इमेज के कंपैरिजन में, बल्कि अपसाइड डाउन आ जाता है। उसका देखो बाल ऊपर है और नोज नीचे है ऑब्जेक्ट में, यहाँ नोज ऊपर है और बाल नीचे है, अपसाइड डाउन, पलट गया, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर। ऐसे इमेज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं साइंस की लैंग्वेज में? हम यूज करते हैं इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो बच्चा मेरे से पूछता है, सर यहाँ पर तो कॉनकेव मिरर आपने बताया था हमें पिछली शीट में, पिछली फोटोग्राफ में, तो क्या ये यही है? आंसर इज यस। सर एक ही मिरर से दो तरह की फोटोज? यस सर, लेकिन कैसे? एक बार फेस को बिल्कुल पास रखना है और एक बार फेस को काफी दूर रखना है, तब जाके आपको ये दिखेगा। सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन रे डायग्राम की मदद से हम आपको 10th क्लास में समझाएंगे। वो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है कि ऐसा क्यों हो जाता है इन्वर्टेड। अभी तो आपको बस ये याद रखना है, इस क्लास में अगर बहुत दूर रखेगा तो इन्वर्टेड इमेज, और बहुत पास रखेगा तो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज। जब आंखें ऑब्जेक्ट की भी ऊपर है, नाक नीचे है तो इसका भी नीचे है, ऐसे इमेज को जो बिल्कुल सेम पोज में हो जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, ERECT, इरेक्ट इमेज। और अगर अपसाइड डाउन आ जाए तो इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। जिन बच्चों को ये डायग्राम समझ आया, ये फोटोग्राफ समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट। अगर कोई, वेरी गुड, डाउन डाउन। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे, सर कम से कम चीज क्या याद रखनी है इसमें? रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के बहुत क्लोज होगा तो इमेज क्या होएगा? इरेक्ट भी होएगा और काफी बड़ा हो गया, मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बड़ा हो गया। और इसमें क्या याद रखना है, अगर उसने आउट स्ट्रेच कर दिया आर्म को और दूर कर दिया, यहां पर इमेज इन्वर्टेड होगा, और वो इन्वर्टेड सर ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा होएगा कि बड़ा होएगा, कितना होएगा? ये डिपेंड करता है उसने कितना दूर करा आपकी बाजू को। ये वाला इसके बराबर भी हो सकता है, ये दोनों बराबर के साइज के भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। तीनों केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये ऑब्जेक्ट का इमेज से, ऑब्जेक्ट का मिरर से ये डिस्टेंस कितना है। तीन केस बनते हैं अलग अलग। जैसे ही आप इसको चेंज करते हो, यहां करा, यहां करा, यहां करा, यहां करा, तो ये इमेज बनेगा तो उल्टा, लेकिन कभी इसके बराबर के साइज का होएगा, कभी कभार इससे छोटा हो जाएगा, कभी कभार बड़ा भी हो जाएगा। ये हमने कम से कम सीखा इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये देखो, एक बच्चा है, वो क्लिनिक में गया, और आप क्या देखते हो कि इधर रिसेप्शनिस्ट बैठा है, और यहाँ पर वो बच्चा एक मिरर के पास आया, उसने देखा पूरी रिसेप्शन में ये लोग जो बैठे हैं वेटिंग करते हुए पूरा ही व्यू आता है। वो बड़ा हैरान होता है कि जब मैं घर में अपना मिरर देखता हूँ तो घर में मैं मिरर के सामने खड़ता हूँ, मेरे को अपना ही फोटो दिखता है, इस मिरर के सामने खड़ा देखता हूँ पूरा रूम ही दिखता है और सारे लोग छोटे छोटे दिखते हैं। ऐसा क्यों? याद रखना, जिस मिरर के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात,
बेटे डैफोडिल के बच्चे डोंट रोम प्लीज। जिस मिरर के अंदर आपको लार्जर व्यू चाहिए होता है, पीछे की सारी चीजें दिखें, चाहे वो छोटी छोटी दिखें, उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉन्वेक्स। बच्चा कहता है सर कन्वेक्स कौन सा था, एक बार याद करवाना। कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जो सेंटर से बाहर को उभरा हुआ होता है। सेंटर ऐसे गुलाई में है, ये ऐसे गुलाई, ऐसे गुलाई में सेंटर वाला पोर्शन बाहर को उभरा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यही मिरर निगरानी के लिए यूज किया जाता है, सर्विलेंस मिरर। ओके। तो जब वो ज्यादा पास आता है तो रिसेप्शन का एरिया कम दिखता है, जब वो दूर को चला जाता है तो देखो थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है फिर रिसेप्शन का। जब वो मिरर के पास आ जाता है बच्चा, तो तीनों पर्सन में से एक पर्सन दिखाई नहीं देता, दो ही दिखाई देते हैं। ओके। तो आपको पता लग गया होगा, किन बच्चों को समझ आ गया सर्विलेंस मिरर, निगरानी वाला मिरर कौन सा होता है। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके। अब एक बच्चा कहता है मेरे को, सर हमारा ना प्लाईवुड का काम है, मेरे पापा ना प्लाईवुड का काम करते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा शोरूम है, तो हमें भी डर लगा रहता है कि कोई वर्कर प्लाईज को खराब तो नहीं कर रहा, हथौड़े तो नहीं मार रहा बिना मतलब के। तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं अपने पापा को सलाह दूं कि वो अपने काउंटर के पास कॉन्वेक्स मिरर लगाएं ताकि वर्कर्स के ऊपर नजर रखी जा सके? टीचर सेज यस, आज ही जाओ, अपने पापा को सजेशन दो, पापा प्लीज प्लेस द कन्वेक्स मिरर दैट विल सर्व एज द सर्विलेंस मिरर। हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमसे हमारे नुकसान नहीं कर सकेंगे। कितने बच्चे अपने, अगर बिजनेसमैन है तो कितने बच्चे आज जाकर ये सलाह देंगे पेरेंट्स को? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनका बिजनेस है। अब जितने भी वो देखो, ये सनफ्लावर में तो बहुत सारे बच्चे बिजनेसमैन के हैं, वेरी गुड। तो आपने ये सजेशन देना अपने पापा को जाकर आज। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फोटोग्राफ। डैफोडिल के बच्चे अब थोड़े से लापरवाह हो गए हैं बेटे, पढ़ नहीं रहे आप, ध्यान रहे। ये देखो नेक्स्ट फोटोग्राफ, ये उसी बच्चे की अलग अलग फोटोग्राफ्स है। कॉनकेव मिरर में ऐसे दिखा, कॉन्वेक्स मिरर में वो क्लिनिक में जाके ऐसे दिखता है, और जो घरों में लगा होता है प्लेन मिरर, उसमें नॉर्मल साइज का साइज दिखता है, जितना खुद साइज है उतना ही इमेज का साइज है। और कॉन्वेक्स में ये छोटे साइज का है। और देखो बेटे, ये देखो, ये तो हमने कर ही लिया पहले। ये देखो बेटे, ये कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, छोटा साइज दिख रहा है। कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास खड़ेगा तो बड़ा दिखेगा, राइट। और कॉनकेव मिरर से दूर खड़ेगा तो उसका इमेज अपसाइड डाउन हो जाता है, इन्वर्टेड। ये सारे इमेजेस की फोटोग्राफ्स, राइट बेटे, शाबाश। बाकी की बातें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, रेज योर हैंड, शाबाश। तो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है, आप इसको करके आओगे तो नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारी फोटोज और भी दिखाऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। देखो मेरे पास कितनी फोटोज हैं, बहुत सारी फोटोज हैं बच्चे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ के असाइनमेंट करके आओगे। ठीक है, शाबाश, बाय बाय।